بلدیاتی حکومت کے قیام کے لیے جماعت اسلامی نے تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لیا۔ پی ٹی آئی کو ڈیپٹی میئر کی پیشکش کر دی۔ تحریک انصاف نے غیر مشروط حمایت کر دی۔ حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی تسلیم کرے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں، میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کراچی کو ترقی دلائیں گے، روئیں گے نہیں، اپنا اختیار لیں گے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کی تیسری پوزیشن ہے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اتحاد کی نشستوں کی تعداد 191 بن رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے غیر مشروط طور پر ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے کسی بھی قسم کی مداخلت کی تو مزاحمت کریں گے۔ اس وقت تو نمبرز پہ بات ہوگی، نمبرز میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی کالک ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا نا، کوئی کالک ملنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو جبر کے ذریعے، لالچ کے ذریعے خریدے یا طاقت کے ذریعے اس کو مجبور کرے، تو یہ جمہوریت پہ کالک ہے، یہ پوری جو ہے وہ اپنی پارٹی کے منہ پہ کالک ہے۔ جو یہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ووٹوں کی تعداد میں جماعت اسلامی پہلے اور پی ٹی آئی دوسری پوزیشن پر ہے۔ حافظ نعیم نے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی بھی مذمت کی۔ یہ کہاں سے ہو گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی جو اس واقعے کی آفیشلی مذمت کر رہی ہے، تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے، اس پارٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اس سے ملے تو ریاست سے دشمنی ہے۔ ریاست سے دشمنی کیسے لی جا سکتی ہے؟ ریاست بھی پاکستان کی تحفظ کی ذمہ دار ہے نا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کے بیان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بیٹھ کر ہم سے بات کرے تو ہم تیار ہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ قائم کر لیا۔ فارورڈ بلاک بننے کا امکان پیدا ہو گیا۔ جماعت اسلامی کی حمایت کے بعد کراچی میں پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ متعدد یو سی چیئرمینوں اور کونسلرز نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے شروع کیے۔ پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندوں نے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے پی ٹی آئی کے بلدیاتی نمائندوں نے رابطے شروع کر کے پی ٹی آئی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری ارسلان تاج کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں پر حکومت سندھ دباؤ ڈال رہی ہے۔ کراچی کا میئر جیالہ ہی ہوگا، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں ہر سیاسی جماعت اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اخلاقی طور پر جس جماعت کے پاس عددی اکثریت ہو، میئر اس کا ہونا چاہیے۔ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے نمبر پورے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، کراچی کے مسائل سب کو مل کر حل کرنے چاہیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا ایک اور احسن اقدام سامنے آ گیا۔ اب کراچی کی سڑکوں پر پیپلز بس سروس کی گرین بسیں بھی دوڑیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ 1 سے 1.5 ماہ میں بسیں چین سے کراچی پہنچ جائیں گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز بس سروس میں مزید 30 گرین بسوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بسیں 1 سے 1.5 ماہ میں چین سے کراچی پہنچیں گی۔ پیپلز بس کی ایک گرین بس ملیر ماڈل کالونی کے ڈپو پر موجود ہے۔ یہ بس پیپلز بس کی دیگر بسوں سے کچھ مختلف ہے۔ زمین سے دیگر بسوں کے مقابلے میں اونچی ہے۔ گرین پیپلز بس الیکٹرک ہائبرڈ ہے جو جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ بس میں 35 سیٹیں بیٹھنے کے لیے ہیں جبکہ 60 افراد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ پیپلز گرین بس میں اے سی اور موبائل چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ انتظامیہ کے مطابق بسوں کا روٹ ابھی مختص نہیں کیا گیا۔ اور اب بات کریں کراچی میں آٹے کے بحران کی، تو کراچی میں آٹے کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ فلور ملز کے پاس صرف 2 روز کی گندم کا ذخیرہ رہ گیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے چیئرمین چودھری عامر عبداللہ کا کہنا تھا کہ حکومت تحریری معاہدے سے مکر گئی ہے۔ 15 مئی کے بعد سندھ سے گندم کراچی لانے کی پابندی اٹھانے کا معاہدہ ہوا تھا، تاہم پابندی نہیں اٹھائی گئی۔ کراچی والے پورے ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مشہور ہے۔ گندم نہ ہونے کے سبب فلور ملز 1-2 روز میں بند ہو جائیں گی۔ 3 کروڑ آبادی والے شہر کراچی کی گندم کی یومیہ ضرورت 10,000 ٹن ہے۔ قلت کے باعث کراچی میں گندم کی 100 کلو کی بوری کی قیمت 12,300 روپے پر پہنچ جائے گی۔ وزیر خوراک مکیش چاولہ نے 5 مئی کو سندھ میں گندم کی قلت نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان سے نوک جھوک بھی ہوئی تھی۔ مزید انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کراچی انہوں نے الاؤ کیے کہ آپ کراچی کو سپلائز دے جب تک گورنمنٹ اپنی پریکیور کر لے اور 10,500 کے حساب سے دے۔ تو اس وقت میں یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ اس وقت بھی ہمارے پاس گندم بہت اویلیبل ہے کراچی میں،
इस फोरम के थ्रू मैं ऑल फ्लावर मिल एसोसिएशन को बोलूँगा कि आप आएँ, चनाल भरें, गंदम उठाएं। कोई गंदम की शॉर्टेज नहीं है, बहुत गंदम है कराची में इस वक्त अवेलेबल। पास्को की 15 लाख बैग्स पड़े हुए हैं, दैट इज़ 1.5 लाख मेट्रिक टन के करीब, और शिप्स भी लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था। देखिए जी, जब 10,500 में अगर गवर्नमेंट उनको कणक दे रही है तो उसमें आप 15 रुपये ग्राइंडिंग चार्जेस लगा दें। 15 रुपये अगर आप ग्राइंडिंग चार्जेस लगाएंगे तो ये तकरीबन 120 रुपये का जाकर बनता है। तो मार्केट में आटा 125 रुपये के रेट से होना चाहिए। बैठे क्रॉस टॉक नहीं करें आप। मैडम, आई थिंक मेरे भाई में थोड़ी अकल कम है। एक सेकंड बात करने दें मुझे। पूरी नहीं हुई है, आप तशरीफ रखिए। खुरम शेर जमान मैडम, पब्लिक इंपॉर्टेंस की स्टेटमेंट में ये बात नहीं कर सकते। लेट मी कंप्लीट। उनको बात तो मुकम्मल करने दें। आप नहीं क्या आप मैडम, मेरा अर्ज ये है, भाई को क्यों खड़े हो गए? मेरे भाई को इतना भी पता नहीं, इतनी अकल भी नहीं है इसमें, इतनी अकल भी नहीं है इसमें कि वो जब था पैकेज, वो था सब्सिडाइज्ड व्हीट का पैकेज। ये है प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट इस वक्त गवर्नमेंट का रेट है जो 10,000 पे डिक्लेयर्ड है। उस वक्त चल रही थी रिलीजेस 5,600 रुपए में। तो इसको कोई अकल है नहीं, बस खड़े होकर अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करना है। पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, खड़े होकर पॉइंट स्कोरिंग करनी है। पब्लिक किसी का ख्याल है ही नहीं, बस ये है कि आओ शोर करो और चले जाओ, और कोई काम धंधा है ही नहीं इनको। तो मैडम, गंदम बहुत अवेलेबल है, जितनी भी आ जाओ, चलो तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें कितनी चाहिए। क्या दिखाओगे? आगे बात करो साहब। आप इस तरह तो से बात मैडम, नहीं कर सकते। तशरीफ रखिए आप। आपकी स्टेटमेंट आप कंप्लीट करें, अपनी स्टेटमेंट। खुरम शेर जमान साहब, आप इस तरह से बिहेव नहीं करें। क्या है मैडम? आप इस कुछ तरह से पता क्यों है behave कर रहे नहीं, हैं? अकल है नहीं, कुछ पता है नहीं, अकल है नहीं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ही नहीं पढ़े इन्होंने। मैडम, कुछ पता है नहीं, कुछ अकल है नहीं इसको। वो आटे की बात अलग थी, मैं इधर गंदम प्रिक्योरमेंट की बात कर रहा हूँ, और ये अपनी बात पॉइंट स्कोरिंग खड़े होकर कर रहा है। इसको कोई अकल है ही नहीं। तशरीफ रखिए। इनको कोई, शेर जमान साहब तशरीफ रखिए। मैडम, इनको ये भी नहीं पता कि प्रिक्योरमेंट क्या होती है और आटे का क्या होता है। तो ये बस खड़े होकर पॉइंट स्कोरिंग करनी है इनको। डीएमसी ईस्ट के महकमे बागात की कार्रवाई। कब्जा माफिया से इमरान खान पार्क वागुजार करवा लिया गया। माजी में इमरान खान पार्क में तज़ीन और आराइश MNA से फंड से करवाई गई थी, जिसके बाद यहाँ खेलों की सहूलियात फराहम करने के लिए भारी रकम लोगों से वसूल की जा रही थी। मज़ीद तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल में इमरान खान पार्क को कब्जा माफिया से वागजार करा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पार्क पर PTI से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान का कब्जा था। पार्क में मौजूद 4 कमरों समेत दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। इमरान खान पार्क DMC ईस्ट की मिल्कियत है, जहां साबिक MNA के तैनात करदा कारिंदे लोगों से खेलों की सहूलियात के लिए भारी रकम वसूल कर रहे थे। जमात इस्लामी के UC चेयरमैन फयाजुल हुदा कहते हैं, हमने शिकायत की, इंतजामिया हरकत में आई। 16,000 4 घंटे का लिया जाता था, तो कोई तस्वर कर सकता है कि कोई रोज़ आदमी 16,000 दे और लड़के खेले यहाँ पर आके। तो मैंने इनको एक लेटर दे दिया कि आप इसको वागज़ा कराएं, और ये 1/3/2023 में मैंने ये लेटर दिया था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने कार्रवाई करने के बाद जो भी DC वैसे थे वो इन्होंने अपना करा के, और आज उन्होंने फ़ोन किया। डायरेक्टर पार्क्स तौकीर अब्बास ने कहा कि हमने पार्क वागजार करवा लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में पार्क में आवाम खेल कूद की सरगर्मियां फ्री में कर सकेंगे। हमने इनसे चीज़ें खाली करा ली हैं, उसको सील कर दिया है, और पब्लिक के लिए पार्क खुला रहेगा। पब्लिक जैसे खेल रही थी, आ रही थी, वॉक कर रही थी, वो करेगी, उसकी वो पाबंदी नहीं है। बाकी है कि अभी फ़िलहाल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको हमने जो कमर्शियल वो हमने सस्पेंड कर दी है। इंतजामिया की जानिब से इमरान खान पार्क के नाम से मंसूब तमाम बोर्ड्स उखाड़ दिए गए। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। SSGC की गफलत का एक और केस सामने आ गया। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के फ्लैटों में गैस पाइपलाइन से सीवरेज का पानी आने लगा। मकीन सख्त परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
ये मनाजिर किसी फुवारे के नहीं बल्कि गैस पाइपलाइन के हैं, जिसमें सेवरेज के पानी ने इकबाल प्लाजा फ्लैट के 172 घरों के मकीनों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। इकबाल प्लाजा फ्लैट के मकीन खाने पीने की अशिया होटलों से लाने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि 1 माह से इसी तकलीफ दे सूरत हाल का सामना है। SSGC को मुतअद्दिद शिकायत कर चुके हैं, लेकिन मसला जूं का तूं है। भाई गुजारा किस तरह कर रहे हैं, हर आदमी बाहर से जाके नाश्ता लेके आ रहा है सुबह, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। अब क्या करेगा? अब आप देखें इस महंगाई के अंदर ऐसे मसले मसाइल आ गए। क्या कहने का मकसद है कि ये बड़ा काम है, ये बड़ा काम है, इसको हम कर रहे हैं और इतना डिले कर रहे हैं। जिस तरह की अज़ियतनाक हम लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं। ये देखिए मैं अभी नाश्ता लेके आया हूँ, ये तीसरी दफ़ा लेके आया हूँ मैं सुबह से। पहले अपने स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए, फिर बेटी के लिए उसका पेपर है उसके लिए, अब मैं अपने लिए लेके आया हूँ। मकीनों का मुतालबा है कि गैस लाइन से पानी आने के अमल को फौरी रोक कर गैस फराहम की जाए ताकि इस झंझट से निजात मिल सके। कैमरामैन अदील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रेलवे पुलिस कराची डिवीजन का रेलवे जमीन पर कब्जा के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रेलवे अफसर अमजद की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। एंटी इंक्रोचमेंट एहलकारों और हुकाम ने जगह वागुजार कराने में हिस्सा लिया। कराची सिटी रेलवे लैंड नज़द हम्प यार्ड रेलवे कॉलोनी माशाअल्लाह बस स्टॉप पर गैर कानूनी झुग्गियों को रिमूव भी कर दिया गया है। खबर आपको दे रही है रेलवे पुलिस कराची डिवीजन का रेलवे ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट का ये ऑपरेशन हुआ है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, इस ऑपरेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रेलवे पुलिस कराची की जो है वो एक बड़ी कार्रवाई ज़मीन पर जो कब्जा किया गया था उसके खिलाफ जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो मिलके ऑपरेशन किया गया है। जो रेलवे ऑफिसर है IOW अमजद की सरबराही में जो है वो ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के एहलकार और हुकाम की जानिब से जो कब्जा की गई जगह थी उसको वागुजार करवाया गया, जिसपे जो है वो बस स्टॉप पर गैर कानूनी झुग्गियां जो कायम की गई थी उसको जो है वो रिमूव किया गया। तकरीबन जो है वो वागुजार करवाई गई जमीन का रकबा तकरीबन बताया जा रहा है 6125 स्क्वायर फीट की ये जो जगह थी जिसके ऊपर कब्जा था उसको जो है वो वागुजार किया है, जिसपे बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो ये जो है वो मालियत की जगह थी जिसको जो है वो जो कब्जा किया हुआ था, जिसके ऊपर जगह कायम थी और एंटी इंक्रोचमेंट ने और रेलवे पुलिस ने मिलकर जो है वो इसको वागुजार करवा लिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख। महकमे शुमारियात ने कराची को बुलंद तरीन इमारतों का शहर करार दे दिया। 7वीं मरदमशुमारी में बुलंद तरीन इमारतों में आदाद-ओ-शुमार मुतासिर होने का इंकशाफ कर दिया। महकमे शुमारियात ने चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत को आगाह किया कि पूरे मुल्क में 20 मंजिला से बुलंद 42 इमारतें हैं। उनमें से 32 कराची के पोश इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन में वाक़ हैं। महकमे शुमारियात के मुताबिक कराची की बुलंद तरीन इमारतों में बेशतर फ्लैट्स खाली पड़े हैं, जिससे मरदमशुमारी के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार हासिल नहीं हो रहे। इनमें एमआर सर फहरिस्त है। इस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमे शुमारियात को DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम से कोऑर्डिनेशन करने की हिदायत जारी की हैं। मरदमशुमारी का अमल फिर से शुरू। 63 शहरों में मरदमशुमारी 22 मई तक जारी रहेगी। इदारे शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन अजला में तौसीक की गई थी उनमें ऑपरेशन जारी रहेगा। तौसीक का फैसला 17 मई को होने वाले इजलास में हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर और कराची में UAE की कौंसल जनरल बखीर अतीक रोमैती ने मुलाकात की है। अमारात ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए घरों की तामीर के हवाले से मनसूबे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दिए जाने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत तर करने और UAE के साथ तिजारत को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ। अमाराती सफ़ीर ने वज़ीर आला को बताया कि UAE सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर में सिंध हुकूमत की मदद करेगा, मुतासरीन की बहाली के लिए घरों की तामीर के हवाले से भरपूर ताउन करेगा। आपको मज़ीद बताएं कि इमाराती हुकूमत और यही है कि हलाल अहमर शिप और रोज़ा सिंध समेत पाकिस्तान भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ अमल है। इस मौके पर कौंसल जनरल बखीर अतीक रोमैती ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मदद जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और खबर शामिल करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गिरफ्तारी के हवाले से होम डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में रखा जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक इमरान इस्माइल ने जलाओ, घेराव और सड़कें बंद करने के लिए लोगों को उकसाया, मुल्क और कौम की जान माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इमरान इस्माइल को 30 दिन डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में रखा जाएगा। नेशनल यूथ असेंबली सिंध के तहत पार्लिमानी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शुराका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत और पाक फौज से भरपूर यकजहती का भी इजहार किया। तफसीलात सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल ईस्ट में सजा नौजवानों का ऐवान, जिसमें सूबाई वजीर शमीम मुमताज, साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा और सीनियर सहाफी मजहर मजीद ने शिरकत की। सूबाई वजीर शमीम मुमताज ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत पर भी जियालों ने सबर का दामन थामे रखा। जो कुछ हुआ 9 मई को, बिल्कुल हम भरपूर मजम्मत करते हैं उस सारे वाक़यात की, जिसने भी किए हों। मैं ये नहीं कहूँगी किसने किए हैं, जिसने भी किए हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है, वो रियासत के दुश्मन हैं, वो हमारे अमन व अमान के दुश्मन हैं, और हम उनको शुमार उसी तरह करेंगे कि वो दहशत गर्दी में शामिल रहे। तकरीब से साबिक डिप्टी मेयर और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अरशद वोहरा ने नौजवान नस्ल को तहम्मुल मिजाजी अपनाने की तलकीन की, जबकि सीनियर सहाफी मजहर मजीद ने मुल्क की सियासी तारीख पर रोशनी डाली। अपने दोस्तों की उसी तरह हमने रिस्पेक्ट करनी है, उसी तरह इज्जत करनी है। हम अगर इस एक चीज को, अगर इस एक पॉइंट को हम जो है अपना टारगेट बना लेंगे और हम इससे डेविएट नहीं करेंगे, तो फिर हम चाहे किसी भी जमात से, लेकिन हम अपने कैरेक्टर को एक प्रिंसिपल्ड और डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर में अपने आप को महदूद रखेंगे, हम डेविएट नहीं होंगे। 83 में अफगानी साहब दोबारा मेयर इलेक्ट हुए, दोबारा डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का आया। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर को तकसीम रखा गया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रखा गया। तो जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने वालों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। कन्वेंशन में अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिदमात पर खराज तहसीन, 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदादें मंजूर कर ली गयी। कैमरामैन अजलान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।